Okay. Then finally, electromagnetic waves, if there is time varying crossed electric and magnetic field, they produces some disturbances which can propagate, and these disturbances are called electromagnetic waves. Then properties of electromagnetic waves. Suppose x-axis, y-axis and z-axis is there. Now this is the yellow colored wave is representing electric field, and the black colored wave is representing magnetic field. Now the variation of electric fields are along y-axis, and variation of magnetic field is along z-axis. The black one, the variations are along z-axis, and the disturbances can travel along x-axis. So this crossed time varying electric and magnetic field produces a disturbance, and that is electromagnetic wave. Variations in both electric and magnetic fields occur simultaneously, that means एक साथ होते हैं. Therefore they attain their maxima and minima at the same place and at the same time. The direction of electric and magnetic fields are mutually perpendicular to each other and as well as to the direction of propagation of wave. The electric field vectors E and the magnetic field vectors B are related by C equals to E naught divided by B naught. This is very important relation. C is speed of light, E naught is amplitude of electric field, and B naught is amplitude of magnetic field. And if E naught is divided by B naught, it will give you property of light, and that is speed of light. Therefore the electric and magnetic fields are related to the property of light of wave. The magnetic wave, the magnetic wave, the magnetic wave, the visible part is called light, otherwise it is magnetic wave. C equals to E naught divided by B naught. Yes, vacuum. Yes, vacuum. Yes. सर Yes. स्क्रीन नहीं दिख रही. मुझे तो मेरे फ़ोन पे स्क्रीन दिख रही है बच्चे. आपने जो मुझे पिन किया है वो चेक करिए कि आपने किसी और प्रोफाइल पे तो नहीं पिन किया है मुझे. मेरे दोनों प्रोफाइल्स में क्या है, जहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, उसे क्लिक करिएगा बच्चे. सर किसी पिन में नहीं दिख रही, आपकी तीनों में करके देखी. ओके. और कहाँ से छूटी हुई थी? सर स्टार्टिंग से ही नहीं दिख रही. इस वाले स्लाइड के स्टार्टिंग से? सर मतलब स्टार्टिंग से ही, जब से आपने स्टार्ट किया है पढ़ाना. अरे तो ये आप लोगों को पहले से ही बोलना चाहिए बच्चे, ऐसा सर कैसे? लिखा था पर आपने देखा नहीं. नहीं सर, स्लाइड्स दिख रही थी, उसके बाद नहीं हाँ, दिखी. आपने 2 मिनट्स पहले आप लोगों ने कमेंट किया. रुकिए मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ. यस सर. यस सर. मैं देखता हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन में हूँ. रिज्यूम और प्रेजेंटेशन, किसी और ने प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया था मुझे लगता है. अब देखिए आया. सर ओके. मैं बस इसको स्लाइड शो पे करता हूँ. आ रही है? आप प्लीज Yes, कमेंट sir. अगर स्क्रीन आपको दिखे. यस सर. ओके. देन पहले तीनों एक्सेस ड्रॉ करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस. इसके बाद ये देखिए इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस दिखाए गए हैं. द येलो वन इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and the amplitude of electric field is E naught, and the black one is amplitude of magnetic field और B naught magnetic field का amplitude. B is varying along Z axis, E is varying along Y axis, और इन दोनों की वजह से जो डिस्टर्बेंसेस या वेव्स क्रिएट होंगी, ये वेव्स एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगी. Now the variation in both electric and magnetic fields occurs
साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस एक साथ होंगे और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज़ एक ही पॉइंट पर आ रही हैं। इसी पॉइंट मैक्सिमम हो रहा है, फील्ड भी मैक्सिमम हो रहा है और इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम और ज़ीरो भी दोनों सेम पॉइंट पे हो रहे हैं। तो इस तरीके से इनके वेरिएशंस एक जैसे हैं। फ़र्क क्या है, एक वाई एक्सेस के अलॉन्ग वेरिएशन है एक में और एक में जो है वेरिएशंस जेड एक्सेस के अलॉन्ग है। The direction of electric and magnetic fields are mutually perpendicular to each other as well as to the direction of propagation of wave. Then the electric field vector E and the magnetic field vector B are related by C equals to E naught divided by B naught, where E naught and B naught are the amplitudes of the respective fields and C is speed of light. मैं इसे ही डिस्कस कर रहा था। C स्पीड ऑफ लाइट है और E naught डिवाइडेड बाई B naught, ये जो रेशियो है इट इज़ इक्वल्स टू सी। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी मटेरियल में या किसी भी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस हैं तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिसाइड कर रही हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट। सपोज़ आप वैक्यूम में ना डिस्कस करें, किसी मीडियम में डिस्कस करें, तो आप सी की जगह पर वी ले लेंगे, ई नॉट की जगह पर ई ले लेंगे और बी नॉट की जगह पर बी ले लेंगे। And in that case equation becomes V equals to E upon B, and this V is speed of light in medium and here it is speed of light in vacuum. Now the fourth property, the velocity of electromagnetic wave in free space is C equals to 1 upon under root mu naught into E naught, and this mu naught into E naught फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर किसी मीडियम में हो तो v इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू ई। अब देखिए म्यू परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, और ये दोनों एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, लाइट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये एक तरीके का यूनिफिकेशन हो गया इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ऑप्टिक्स का। तो जो डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। फिफ्थ पॉइंट में वही बात डिस्कस की है जो मैंने कहा आपसे, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मटेरियल मीडियम इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, वेयर म्यू एंड एप्सिलॉन आर एब्सोल्यूट परमिबिलिटी एंड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। कुछ कमेंट्स आए हैं, क्या फिर से कोई इशू आ गया? नो। रुचि बहुत लेट ज्वाइन किया बच्चे। आई होप screen is properly visible to all of you. Yes, sir. Okay. Yes, sir. The electromagnetic waves obey the principle of superposition. ये जो भी वेव्स हैं ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करती हैं, फॉलो करती हैं। ये चीज़ आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि द ओवरऑल डिस्टर्बेंस or displacement of the particle in a medium is vector sum of disturbances or displacement caused by electric as well as magnetic vectors. Now the electromagnetic waves carry energy as they propagate through space. This energy is divided equally between electric and magnetic field. That means the total energy is divided into electric and magnetic field in equal amounts. एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी आपने कुछ रिलेशंस पढ़े हैं हम लोगों ने। मैग्नेटिक एनर्जी में आपने हाफ CV² पढ़ा था और आप अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। कैपेसिटर के केस में हम लोग डिस्कस करेंगे ये रिलेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन देयर पाथ्स। देन फॉर डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, more significance is given to electric field. Electric field is called light vector, यानी जो ऑब्जर्व हो सकती है जो रेडिएशन, उसे आप लाइट वेक्टर कहते हैं। हम जितना भी ऑब्जर्व करते हैं ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से होता है। एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल। ये बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो स्पेस में ये जहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं वहाँ से ये जो है विदाउट एनी मीडियम ट्रैवल करती हैं
और हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तब ये मटेरियल से इंटरेक्ट करती हैं और बहुत सारे डिफरेंट एटमॉस्फेरिक या फिर फिज़िकल फिनोमेनाज हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे वो स्कैटरिंग हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो। ये सभी चीज़ें आप मटेरियल और लाइट के इंटरेक्शन से ऑब्ज़र्व करते हैं। एंड हाउ कैन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी प्रोड्यूस्ड? एन ऑसिलेटिंग चार्ज which has non-zero acceleration. That means an accelerating oscillating charge will produce electromagnetic wave. हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट मैं इसे छोड़ूंगा क्योंकि ये सिलेबस में बहुत पुराने से हटा दिया गया है, बट आई हैव टू कैरी द स्लाइड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक दो टॉपिक्स इसमें स्लाइड में नहीं है, मैं अभी एनसीईआरटी की बुक से अगर आज टाइम रहा तो डिस्कस करूँगा। हम लोग 11:50 तक है ना, ओके, अभी 18 मिनट्स हैं मेरे पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट इज़ सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ और अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रिक्वेंसी। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आप इसको जो है प्लेस कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो उसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस टेबल को आपको बिल्कुल अच्छे से रिमेंबर कर लेना है। इसके यूजेस, सोर्सेज, रेंज, फ्रिक्वेंसी की और वेवलेंथ की और इनके नेम्स, ये आपको ध्यान रखने हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बताऊं आपको, विजिबल पार्ट में आप जो है देखें तो विवग्योर आपने पढ़ा है, वायलेट और रेड का रेंज आपको पता है। वायलेट से वेवलेंथ वाइज अगर आप रेड से ऊपर की वेवलेंथ की बात करें तो आपके पास रेड के बाद आती हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आपके पास माइक्रोवेव्स और माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स, वेरी लॉन्ग रेडियो वेव्स ऐसी भी आती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में रेडियो वेव्स तक ही हैं। उसी तरीके से वायलेट के वेवलेंथ से नीचे की कम वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस हैं उनमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, फिर उसके बाद आपके पास एक्स रेज हैं, देन गामा रेज हैं। तो इस तरीके से आपको ये रेज मिलेंगे। तो टोटल विजिबल पार्ट के ऊपर भी 3 और विजिबल पार्ट के नीचे भी 3। तो एज पर दिस क्लासिफिकेशन आई होप कि टोटल जो है 7 जो है इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी जो डिस्कस करनी है। रेडियो वेव्स, दे आर रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू किलोमीटर्स टू 0.3 मीटर। जितना आप रेडियो ट्रांसमिशंस सुनते हैं वो सब रेडियो वेव्स की वजह से ही होता है। और आइनोस्फेयर्स में ये रेडियो वेव्स टकराती हैं, टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं और फिर हमें जो है ये रिसीवर पे रिसीव होंगी। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस हैं डिकोड होने के उनके, और कोई भी पर्टिकुलर म्यूज़िक या स्पीच आपको सुनाई देता है। अगर आप फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू हर्ट्ज टू 10⁹ हर्ट्ज। देन सोर्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, एलसी ऑसिलेशंस जो आपने पढ़े हैं उन्हीं से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। यूजेस इनके, दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग। मैं बताऊं वेवलेंथ और लाइट के लिए 9th स्टैंडर्ड में आपने एक फार्मूला पढ़ा, V इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा इज स्पीड ऑफ द वेव। तो यहाँ पर C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। तो आप केवल कोई एक चीज़ याद कर लें, या तो वेवलेंथ का रेंज याद कर लें या फ्रिक्वेंसी का। दिस इज़ अप टू यू कि आप कौन सा आपको याद करना आसान होता है, और फिर फार्मूला लगा के आप आइदर कन्वर्जेंस कर सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। देन सेकेंड वन इज़ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में 0.3 मीटर से लेके 10⁻³ मीटर तक। देखिए कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, जैसे 0.3 मीटर रेडियो वेव में भी है, माइक्रोवेव में भी है, तो दोनों में इस रेंज को लिया गया है। एंड फ्रिक्वेंसी रेंज इज गिवन, अगेन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स।
and they are used in radars, analysis of fine details of atomic and molecular structure, and they are also used in microwave oven. तो इसके 3 यूजेस हैं, रडार में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को या मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में, एंड माइक्रोवेव ओवन्स में. इंफ्रारेड, these rays are also known as heat rays या heat waves भी इनको कहते हैं. इनकी रेंज 10⁻³ मीटर यानी 1 मिलीमीटर. 10⁻³ मीटर इज़ व्हाट 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर से लेके 1/10 माइक्रोमीटर, या आप मीटर में कहें तो 10⁻³ मीटर टू 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर. एंड सो एज द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी. और कहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, मॉलिक्यूल्स एंड हॉट बॉडीज़. तो मॉलिक्यूल्स से या हॉट बॉडीज़ से ये रेडिएट होते हैं. यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं, इंडस्ट्री में हैं, मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी में, नाइट विज़न डिवाइसेस, नाइट विज़न कैमरे में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, अर्थ या ग्लोब का जो टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है, इट हैपन्स ड्यू टू दिस इंफ्रारेड रेज. एक्चुअल में जो रेज सरफेस पर पड़ती हैं उनमें कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं जिनसे इनकी वेवलेंथ इंक्रीज़ कर जाती है. तो ये एटमॉस्फेयर में एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन जब एटमॉस्फेयर से बाहर जाना चाहते हैं तो क्लाउड्स और एटमॉस्फेयर से ये जो है रोक लिए जाते हैं और एटमॉस्फेयर में ही ब्लॉक हो जाते हैं. और एटमॉस्फेयर में ब्लॉक होते हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में या ग्लोब का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी इनका यूजेस है. रिवीलिंग सीक्रेट्स, राइटिंग्स ऑन एंशिएंट वॉल्स. पुराने जो है सिविलाइजेशंस के वॉल्स पे जो पेंटिंग्स हैं उनको और उनकी जो है डिटेल्स को फाइंड आउट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. नाइट विज़न कैमरा में कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी जैसे जो है टीवी चैनल्स हैं जो दिखाते हैं कि रात में जो है जानवरों की इमेजेस आपको दिखाते हैं. तो रेड कलर की जो है इमेजेस दिखती हैं, एक आउटलाइन से दिखती है. तो ये नाइट विज़न कैमरा जो है हीट वेव्स पे काम करता है. ये जैसे ऑप्टिकल कैमरा लाइट रेज को डिकोड करते हैं और डिटेक्ट करते हैं, बट इंफ्रारेड कैमराज हीट वेव्स को डिटेक्ट करते हैं. तो जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी इमेज वो जो है क्रिएट करेंगे. तो अगर कोई जानवर कहीं रात में कहीं बैठा है तो डेफिनेटली उसके आसपास जो जगह होगी वो के कंपैरिजन में ठंडी होगी. तो जो गर्म ऑब्जेक्ट है उसकी आउटलाइन आपको दिखाई देती है. देन लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम. क्लियर कट इसका जो रेंज है 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 3.8 है, बट रफली इसको 4.0 से 7.0 तक का भी लिया जाता है मीटर के टर्म में. अदरवाइज नैनोमीटर में 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. फ्रिक्वेंसी रेंज इसी तरीके से आ जाएगी. एंड सोर्सेज क्या हैं इनके, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड. किसी भी चीज़ में जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो इसी वजह से ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर स्टेट एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट. जो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में रहते हैं जब वो लोअर एनर्जी स्टेट्स में आते हैं तो रेडिएशंस एमिट करते हैं. कुछ स्पेसिफिक ट्रांजिशंस में ये रेडिएशंस विजिबल होते हैं और विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है. कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल है, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विज़न एंड फोटोग्राफी. जितना भी देखने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, जो आप आइज़ का इस्तेमाल करते हैं, इट हैपन्स ओनली ड्यू टू दिस विजिबल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. देन अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी रेंज स्क्रीन पे है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ. सोर्स अगेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एंड सन. इनका मेन सोर्स इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में जो हैं ये प्रोड्यूस होती हैं. इसके अलावा ये सन से भी प्रोड्यूस होती हैं. आपको बताऊं अल्ट्रावायलेट रेज जो वेल्डिंग वगैरह का काम होता है उसमें भी प्रोड्यूस होती हैं. देन यूजेस क्या हैं इनके, मेडिकल एप्लीकेशंस, स्टेरिलाइजेशन, किलिंग बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन फूड स्टफ, डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग, forged documents, fingerprints and all.
इस तरीके से इसके आपके जो है यूजेस दिए गए हैं। स्टेरलाइजेशन आपने देखा, किलिंग बैक्टीरिया, तो ये आरओ वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द एक्स रेज, द रेंज इज अगेन गिवन 10⁻⁻9 मीटर to 6 into 10⁻12 meter, and source is inner or more tightly bound electrons in atoms। जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके सोर्स होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जो है किसी टारगेट पे आप हिट करते हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, और इनका इस्तेमाल एक्स रे फोटोग्राफी देन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में किया जाता है, स्किन डिजीज़ एंड ट्यूमर के क्योर में किया जाता है, लोकेटिंग क्रैक्स एंड फ्लॉज इन फिनिश्ड मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। तो क्रैक्स और फ्लॉज अगर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में हैं, डिटेक्शन ऑफ स्मगल्ड गुड्स इन बैग ऑफ अ पर्सन, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो भी फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे फोटोग्राफी की जाती है, दैट इज़ एक्सरे फोटोग्राफी। तो इन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई जगहों पर रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड्स पे भी ऐसे जो है प्लेसेस देखे होंगे जहाँ पर आपके बैग्स वगैरह किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस में रोल करके जाते हैं, तो वहाँ एक्सरे मशीन होती है और बैग का एक्सरे किया जाता है। कुछ अगर अनवांटेड या ऐसा कुछ है जो मेटेलिक है तो फिर उसकी जांच की जाती है। देन गामा रेज, they overlap the upper limit of the X-rays, that is 6 into 10⁻12 meter to the 10⁻14 meter, और फ्रिक्वेंसी रेंज दी हुई है। they are obtained और their sources are radioactive substances, और सन भी है। इंफॉर्मेशंस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, या तो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चेज में। इसके अलावा आप गामा रेडिएशंस का यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और जो मरी हुई सेल्स हैं उनको बर्न करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका यूज़ मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा है, बट मेडिकल फील्ड में जो रेज इस्तेमाल की जाती हैं दे आर सॉफ्ट गामा रेज, बहुत हाई एनर्जेटिक नहीं होती हैं। सबसे पावरफुल अगर रेज की बात करूं तो ये गामा रेज ही होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड ऑल। और इसके बाद एक टॉपिक रहता है, मैं वो डिस्कस करूंगा। वी हैव 6 मिनट्स लेफ्ट, आई होप कि हम कुछ डिस्कस कर पाएंगे। मैं इसे ऑफ करता हूँ। आई थिंक ये स्क्रीन विजिबल होगी आपको। एक्चुअल में मैं डिस्प्लेसमेंट करंट्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। आई होप विजिबल होगा ये आपको। ओके, 5 मिनट्स हैं, अगर 5 मिनट्स में कुछ कर पाते हैं इसको तो जितना भी कर पाएँ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट करंट्स हैं क्या? ओके, 5 मिनट्स तो चली जाएगी बैटरी। सपोज आपने एक कैपेसिटर लिया। Now consider a different surface which has the same boundary. This is a pot-like surface which nowhere touches the current but has its bottom between the capacitor plates. Its mouth is the circular loop mentioned above. रुकिए, यहाँ से नहीं आप समझ पाएंगे। ओके,
बहुत ज़्यादा इसको जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज के टॉपिक से क्लियर हो गए आपको? कमेंट्स कर दें। ओके, काजल ने कमेंट किया, और लोग भी कमेंट करें। एनसीईआरटी की बुक भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों से गूगल क्लासरूम पे, और इसमें आप एज अ होमवर्क ये मान के चलिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है, और जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनको बुक में से भी मैच कर लेंगे आप कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे जो है रह गए हैं, और मैं सेकेंड लेक्चर में इसको कंप्लीट कराऊंगा। और अगली जो क्लास है आपकी, थर्सडे को क्लास नहीं है, बाकी डेज में तो क्लास है आपकी। वो आपकी क्लास है 10:20 से, तो कल भी मैं क्लास लूँगा आपकी, और हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद फिर थर्सडे को आपकी क्लास नहीं है, थर्सडे को दे देता हूँ। आप 12:40 के बाद अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला टेस्ट आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर का टेस्ट हो चुका है। अगला टेस्ट मैं आपका रखूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो आप सभी एग्रीड हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टेस्ट रख लिया जाए थर्सडे को, और मैं 12:40 या 1 बजे के बाद ही टेस्ट आपसे शेयर करूँगा। येस कमेंट करें। बॉयज़ के भी कमेंट आने चाहिए। बॉयज़ में से कोई भी कमेंट नहीं करता है। थर्सडे को टेस्ट में रख दूं? हेलो, ओके, यस सर, ठीक है। तो आप प्रिपेयर करके रखिएगा चैप्टर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसी का टेस्ट रखूँगा, और टेस्ट का नेचर वही होगा, 20 MCQs होंगे, और गूगल फॉर्म के फॉर्म में आपके पास शेयर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बचा हुआ जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और पुराने अगर कोई टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप ज़रूर जो है शेयर करें, ताकि कोई रिवीजन लेक्चर हम लोग प्लान कर सकें। थैंक यू सो मच। यू कैन लीव द क्लास नाउ।